السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کمرشل مالز، تھیٹرز، دواخانوں اور دیگر تجارتی اداروں میں عوام کی جانب سے بھاری اور منمانی پارکنگ فیس کی وصولی کا سختی سے لیا نوٹ۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ کے مختلف عوامی شعبے کے اداروں کو اثاثہ جات کی فروخت اور اراضی کے الاٹمنٹ کے منصوبے سے دستبرداری اختیار کر لے۔ سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی منمانی خبروں اور تبصروں پر قدغن لگانے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے قانون سازی کے اقدامات کیے جا رہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے شہر میں موجود تہذیبی ورثہ کے تحفظ کے سلسلے میں ناکامی پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے سخت برہمی کا کیا اظہار۔ خسرو منزل انہدام اور اس کی جگہ تعمیر کی جانے والی ہمہ منزلہ عمارت کے سلسلے میں اندرون 4 ہفتہ جواب داخل کرنے کی حکومت کو دی ہدایت۔ تلنگانہ میں سینٹرل بورڈز کے اسکولوں میں تیلگو لازمی استعمال کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ CBSE، ICSE اور IB بورڈز امتحانات میں حصہ لینے والے طلبہ کو 10ویں امتحان میں جاری تعلیمی سال سے تیلگو مضمون کا بھی امتحان دینا ہوگا۔ جسٹس اجل بھویان کو تلنگانہ ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس کیا گیا مقرر۔ سپریم کورٹ کالجیم نے گزشتہ مہینے جسٹس بھویان کو چیف جسٹس مقرر کرنے کی صدر جمہوریہ سے کی تھی سفارش۔ 2 سال کے وقفے کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس میں حج 2022 کی سرگرمیاں بحال۔ تلبیہ اور دعاؤں کی گونج میں تلنگانہ کے 373 عازمین حج پر مشتمل پہلا قافلہ پیر کی صبح کی اولین ساعتوں میں راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ارض مقدس کے لیے روانہ۔ صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر بھارت بائیو ٹیک کرشنا ایلا نے کہا، دنیا کی سب سے پہلی نیزل کووڈ ویکسین کے انسانوں پر تجربے کا کام مکمل۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کمرشل مالز، تھیٹرز، دواخانوں اور دیگر تجارتی اداروں میں عوام کی جانب سے بھاری اور منمانی پارکنگ فیس کی وصولی کا سختی سے نوٹ لیا۔ عدالت نے اس سلسلے میں حکام کی خاموشی کے بارے میں ناراضگی جتائی۔ عدالت نے پولیس، GHMC اور دیگر متعلقہ محکمہ جات سے وضاحت طلب کی ہے۔ مفاد عامی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے بلدی نظم و نسق، ٹاؤن پلاننگ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، فائر، پولیس اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو مقدمے میں فریق بنایا۔ ان محکمہ جات سے استفسار کیا گیا کہ وہ پارکنگ فیس کی زائد وصولی پر خاموش کیوں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہر کمرشل کمپلیکس میں پارکنگ کے لیے مناسب جگہ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے بعد ہی بلڈنگ پرمیشن دیا جاتا ہے، باوجود اس کے عوام سے منمانی فیس وصول کی جا رہی۔ ہائی کورٹ نے کمشنر، GHMC اور دیگر شعبہ جات کو مقدمے میں فریق بنایا اور استفسار کیا کہ پارکنگ فیس کی لوٹ کو کس طرح اجازت دی جا رہی، جبکہ وزٹر سے فیس کی وصولی نہ کرنے کے بارے میں واضح ہدایت موجود ہے۔
वजीर भारी मसनूआत के टी रामाराव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अवामी शोबे के इदारों के असासजात की फरोख्त और अराजी के अलॉटमेंट के मनसूबे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि असासजात की फरोख्त के बजाय मरकज अवामी शोबे के इदारों की बहाली के इम्कानात का जायजा ले। के टी रामाराव ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन को मकतूब रवाना किया और कहा कि रियासती हुकूमत को मज़कूरा अराजियत पर नई सनतों के क़याम का मौका फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये मुमकिन ना हो तो हुकूमत को मरकजी इदारों के असासजात की फरोख्त का मंसूबा तर्क करना चाहिए। केटिया ने कहा कि असासजात की फरोख्त रियासती हुकूमत के इख्तियारात के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि कई रियासतें बशमूल तमिलनाडु ने अवामी शोबे के इदारों की फरोख्त की मुखालिफत की है। मैं मोदी हुकूमत से अपील करता हूँ कि अपने मंसूबे पर नजरसानी करे, बसूरत दीगर तेलंगाना हुकूमत फरोख्त की मसाई की शिद्दत से मुखालिफत करेगी। सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मनमानी खबरों और तबसरों पर कदगन लगाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कानून साजी के इक़दामात किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णो ने गुज़िश्ता यौम अपने बयान में कहा था कि मरकजी हुकूमत जल्द ही सोशल मीडिया पर जारी गैर जिम्मेदाराना तबसरों को रोकने के लिए इक़दामात करेगी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काबिल एतबार और जवाबदा बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा। मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आजादाना सहाफत पर ज़रब करार दिया जा रहा और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक, यूट्यूब के अलावा दीगर प्लेटफॉर्म्स पर किए जाने वाले मुखालिफ हुकूमत तबसरों को रोकने के इक़दामात के तौर पर देखा जाने लगा है। कौमी सतह पर चलाए जाने वाले ज़राए इब्लाग इदारों पर सरमायादाराना निज़ाम के कब्जे और गोदी मीडिया की जानिब से चलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे के सबब को देखते हुए कई सरकर्दा सहाफ़ियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की नाकामियों को मंजर-ए-आम पर लाना शुरू किया था और हुकूमत के इक़दामात पर आजादाना तबसरे किए जा रहे थे। लेकिन अब हुकूमत हिंद ने इस सिलसिले में कानून साजी की हिकमत अमली तैयार की है और कहा जा रहा है कि कौमी सतह पर IT एक्ट में तरमीम के जरिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल हासिल कर ली जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से शहर में मौजूद तहजीबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में नाकामी पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए खुसरो मंजिल इन्हदाम और उसकी जगह तामीर की जाने वाली हमा मंजिला इमारत के सिलसिले में अंदरून 4 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। 23 मार्च 1998 को जारी करदा जियो नंबर 102 में खुसरो मंजिल आसार खदीमा के तहत महफूज इमारतों की फहरिस्त में शामिल है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अदालत में दाखिल करदा एक दरख्वास्त मुफाद आमे को समाअत के लिए कबूल करते हुए चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शावली ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रियासती महकमे बल्दी नज़्म नस्क के अलावा कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद, कमिश्नर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को नोटिस जारी करते हुए अंदरून 4 हफ्ता जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। एसी गार्ड लकड़ी का पुल पर वाक़े खुसरो मंजिल को मुनहदिम होने से बचाने और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के सिलसिले में दाखिल की गई दरख्वास्त में दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत से इस बात की शिकायत की कि मजाज ओहदेदारों और हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा खामोशी और इजाजत नामों की इजराई के सबब आसार खदीमा की फहरिस्त में शामिल इस इमारत को तबाह किया जा रहा। खुसरो मंजिल 1920 में तामीर की गई इमारत है और इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुतअद्दिद मरतबा तवज्जो दहानी के बावजूद बल्दी ओहदेदारों और रियासती हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा लापरवाही के रवैये की वजह से इस तारीख़ी इमारत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुलाजमीन और असातिज़ा को बाहमी रजामंदी से तबादले की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने मुलाजमीन और असातिज़ा के बाहमी तबादलों के सिलसिले में मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ अपने दफ्तर में आज मीटिंग की। वज़ीर तालीम ने ओहदेदारों को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर बाहमी रजामंदी के तबादलों के अहकामात जारी करे। वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत इस फैसले से 2558 मुलाजमीन और असातिज़ा को फ़ायदा होगा। जस्टिस उज्जल भोयान को तेलंगाना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़िश्ता महीने जस्टिस भोया को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सदर जमहूरिया से सिफारिश की थी, जिसके तहत मरकज ने अहकामात जारी किए। तेलंगाना के मौजूदा चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस उज्जल भोयान तेलंगाना हाई कोर्ट में जज की हैसियत से बरसरे खिदमत हैं और उन्हें चीफ जस्टिस ओहदे पर तरक्की दी गई है। जस्टिस
उज्जवल भोयान 2 अगस्त 1964 को गुवाहाटी में पैदा हुए और वहीं स्कूली तालीम हासिल की। सरकारी लॉ कॉलेज से LLM की तकमील की। गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का आगाज किया। 2010 में उन्हें हाई कोर्ट का सीनियर वकील मुकर्रर किया गया। 2011 में एडिशनल एडवोकेट जनरल और अक्टूबर में 2011 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 2019 में बम्बई हाई कोर्ट के जज की हैसियत से तकर्रुर किया गया। 22 अक्टूबर 2021 से तेलंगाना हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजली, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हज 2022 की सरगर्मियां बहाल हो गई। तलबियों और दुआओं की गूंज में तेलंगाना के 373 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहला काफिला पीर की सुबह की अवलिन सातों में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अर्ज मुक़द्दस के लिए रवाना हुआ। सऊदी एयरलाइंस से मुक़द्दस सफर के लिए रवाना आज़मीन के काफिले में 214 का ताल्लुक हैदराबाद, 16 का जिले में 44 का जिले नलगुंडा, 2 का जिले संगारेड्डी, 16 का जिले सिद्दीपेट, 2 का जिले गदवाल, 12 का जिले यदाद्री भोंगीर और 11 का ताल्लुक मेडचल मलकाजगिरी से है। गुज़िश्ता निस्फ शब बाद आज़मीन हज का पहला काफिला हज हाउस नापली से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए खुसूसी बसों में रवाना हुआ। हज हाउस में रूह परवर मनाजिर देखे गए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज़मीन के लिए मुयस्सर इंतजाम किए गए। आज़मीन को चेक इन, इमिग्रेशन, कस्टम्स क्लियरेंस के सब्र आजमा मरहलों से महफूज रखने के लिए तमाम उमूर को हज हाउस में ही अंजाम दिया गया। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम की निगरानी में बेहतरीन इंतजाम किए गए। वाज़ेह है कि इस साल रियासत तेलंगाना से फरीज़े हज की अदायगी के लिए 1822 आज़मीन अर्ज मुक़द्दस का सफर कर रहे। सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक कृष्णा एल्ला ने कहा है कि दुनिया की सबसे पहली नज़ल कोविड वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे का काम मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा है कि डाटा एनालिसिस का काम जारी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये डाटा भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस वैक्सीन को मुतारिफ करने की इजाजत मिल जाएगी और ये दुनिया की पहली तिब्बी तौर पर साबित नज़ल कोविड वैक्सीन होगी। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की माहिरीन की कमेटी ने उसूली तौर पर भारत बायोटेक को इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज के तीसरे मरहले के तजज़िये से मंजूरी दे दी है। ये हिंदुस्तान में अपनी नौयत की पहली नज़ल वैक्सीन होगी। भारत बायोटेक दूसरी बड़ी कंपनी है जिसने हिंदुस्तान में तीसरे डोज के लिए तिब्बी तजुर्बे के तीसरे मरहले के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। ये वैक्सीन कोविड की शक्ल जैसे ओमिक्रॉन को मुंतकिल होने से रोकने में मदद करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो डिफेंस सर्विसेज रिक्रूटमेंट स्कीम अग्निपथ को फौरी वापस ले। स्कीम को वापस न लेने से मुत्तल्लिक़ हुकूमत के बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए हैदराबाद के MP ने मरकज से एक बार फिर अपील की है कि वो स्कीम से दस्तबरदार हो जाए। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं हुकूमत से एक बार फिर अपील करता हूँ कि काम करने के इस तरह पेचीदा अंदाज को रोके, मुल्क के नौजवानों की बात सुने, फौज में कॉन्ट्रैक्ट की असास
पर भर्ती की इस स्कीम को फौरी वापस लें और मुल्क की फौज में अददी ताकत और आलात की कमी को फौरी असर के साथ दूर करें। उन्होंने इस मसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी कायदीन ये कह रहे कि 4 साला मियाद की तकमील के बाद फौज से हटाए जाने वाले फौजियों को हम अपने पार्टी दफातर में चौकीदार के तौर पर तकर्रुर करेंगे। अग्निपथ स्कीम फाशिस्ट नाज़िज़्म के फरोग की कोशिश है और कबायली नौजवानों की छत्तीसगढ़ में पुलिस में भर्ती के जरिए हुकूमत ने ये तजुर्बा कर लिया है और अब मुल्क भर में अग्निवीर के नाम पर नौजवानों को जबरन फौज में भर्ती के इक़दाम कर रही। CPI माओवास्ट ने अग्निपथ स्कीम को RSS और BJP का मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की सिमत कदम करार दिया और कहा कि इस स्कीम का मकसद अपने एजेंडे और नजरियात को फरोग देना और वो फौज तैयार करना है जो RSS नजरियात की हामिल हो। मोदी हुकूमत ब्राह्मणवाद हिंदुत्व के फरोग से फाशिज्म फैला रही। माओवास्टों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हुकूमत नौजवानों को मुलाजिमत की फराहमी के नाम पर शहरियों को कुचलने की कोशिश कर रही। माओवास्ट कायद व तर्जुमान अभय के जारी करदा बयान और मकतूब में अग्निपथ को मुआशरे को खौफजदा करने, फाशिस्ट फौज की तैयारी और समाज को मुनक़सिम करने वाली करार दिया और कहा कि ब्राह्मणवाद हिंदुत्व की हामिल बीजेपी तमाम शोबों में फाशिस्ट कुव्वतों को लाने में मसरूफ है जो समाज को तकसीम करने वाले हैं। माओवास्ट तर्जुमान अभय ने बताया कि मुल्क भर में मुखालिफ अवाम पॉलिसियां तैयार की जा रही हैं जो सरमायादारों को फायदा पहुंचाने वाली हैं और जिसके सबब बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम फौज में नौजवानों की जबरी भर्ती के अलावा कुछ और नहीं है। इस स्कीम को माओवास्ट कायदीन ने LPG का हिस्सा करार देते हुए कहा कि इस स्कीम को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमा पर रोशनास करवाया गया ताकि खजानों पर बोझ को कम किया जा सके। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ మెగా 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address: बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कमर्शियल मॉल्स, थिएटर्स, दवाखानों और दीगर तिजारती इदारों में अवाम की जानिब से भारी और मनमानी पार्किंग फीस की वसूली का सख्ती से लिया नोट। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अवामी शोबे के इदारों को असासजात की फरोख्त और अराजी के अलॉटमेंट के मनसूबे से दस्तबरदारी अख्तियार कर ले। सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मनमानी खबरों और तबसरों पर कदगन लगाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कानून साजी के इक़दाम किए जा रहे। रियासती हुकूमत की जानिब से शहर में मौजूद तहजीबी विरसा के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में नाकामी पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का किया इजहार। खुसरो मंजिल इन्हदाम और इसकी जगह तामीर की जाने वाली हमा मंजिला इमारत के सिलसिले में अंदरून 4 हफ्ता जवाब दाखिल करने की हुकूमत को दी हिदायत। तेलंगाना में सेंट्रल बोर्ड्स के स्कूलों में तेलुगु लाजमी इस्तेमाल के इक़दाम किए जा रहे हैं। CBSE, ICSE और IB बोर्ड्स इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा को 10वीं इम्तिहान में जारी तालीमी साल से तेलुगु मजमून का भी इम्तिहान देना होगा। जस्टिस उज्जल भोयान को तेलंगाना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस किया गया मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़िश्ता महीने जस्टिस भोयान को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सदर जमहूरिया से की थी सिफारिश।
2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हज 2022 की सरगर्मियां बहाल। तलबिया और दुआओं की गूंज में तेलंगाना के 373 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहला काफिला पीर की सुबह की अवलिन सातों में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना। सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक कृष्णा एल्ला ने कहा, दुनिया की सबसे पहली नेजल कोविड वैक्सीन के इंसानों पर तजर्बे का काम मुकम्मल। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।